Well, those were the lead stories on DD News at this hour, and now for the top stories in detail. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi will today launch Aadhaar-enabled service delivery in Dudu in Rajasthan. Marking the second anniversary of the Unique Identification Authority of India, the nationwide Aadhaar cards will plug loopholes in implementation of welfare schemes. Schemes including Manrega and pension schemes will be integrated with the Aadhaar card. The payment mechanism is aimed at checking corruption and pilferage in the social sector schemes that seek to promote financial inclusion. The government is rolling out Aadhaar-enabled service delivery initiatives in 51 districts across the country. Crore people will get Aadhaar cards. So far, more than 20 crore people have been registered under the Aadhaar scheme. The 21st crore Aadhaar card will be issued on Saturday in Dudu in Rajasthan on the second anniversary of Aadhaar. We have data flow coming from all partners, including NPR, which is a very valued and large partner for us. So all we're saying is by 2014, at least 60 crore people will have Aadhaars. Most probably it will be more than that, but I don't want to give a statement beyond 60 crores as a target. Marking the second anniversary of Aadhaar, the integration of government-run flagship programs with Aadhaar system is also being launched. Prime Minister Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi will formally launch the program that aims at ensuring transparency and implementation of the schemes. The schemes of Manrega, Social Security Pension, Gramin Awas Yojana, LPG cylinder supply and PDS will be integrated with the Aadhaar card. With the Aadhaar platform, we have the platform now for doing direct cash transfers of both entitlements like pensions, scholarships, etc., as well as for subsidies. So we have built the plumbing, we have built the architecture, we think it's scalable, we think it works. Andhra Pradesh is at the forefront of issuing Aadhaar cards, and 25% of those registered for Aadhaar are from the state. Aadhaar is a 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India. Each Aadhaar number is unique to an individual and will help in providing access to services like banking, mobile phone connections, and other government and non-government services in due course. Rishi Kumar's report, DD News, Delhi. And now we are now joined by V. Ramakant from Kakinada in Andhra Pradesh to give us more details of the launch of the schemes there. Ramakant, we know that the Andhra Pradesh is in forefront as far as the implementation part of the scheme is concerned. You've been talking to us since morning and basically trying to put in perspective how this is going to be implemented and beneficiaries aspect also. We believe you have some guests with you. Over to you for more details. Well, Sakal, actually the reason why Kakinada was selected for the entire process is because this is the only town in the entire country which had enrolled 98% of the population for the Aadhaar-based public distribution of ration. I have with me Deputy Director General of UIDAI, and he'll tell us as to how the entire process is being implemented. This is the finest example of how the technology can be used for effective use of public distribution system. Yeah, as you had just mentioned, with the active cooperation of the people and also the district administration and state government, we are able to effect very quick, transparent and dependable system of Aadhaar authentication and delivery of the rations, as you have seen here. Not only here, in another 6 districts of Andhra Pradesh, we have completed more than 90% of enrollment. In another couple of months, we are going to have similar Aadhaar-enabled delivery system implemented in those districts as well. In East Godavari district, as you rightly said, 98% population is covered, and that is why East Godavari is being today presented by Honorable Prime Minister the Best Aadhaar Award. Well, Sakal, this is the best example of how the entire district administration worked under one unity. And let's talk to the in-charge collector here, because the collector had gone to Dudu in Jaipur to receive an excellence award. Mr. Ramarao Garu, how difficult was this, and what were the difficulties that you faced in order to convince the people to come and enroll here? Initially, we brought awareness among the public, and the people are convinced here that they should have the Aadhaar card for so many reasons. And easily people were convinced, and our officers, they took much care, much interest also in convincing the people.
Well, Sakal, actually, see, the entire process works something like this. They get an SMS on their mobile phones, they come here, and then they ask the ration shop owner to show what is the quantity that they are entitled for. And when they say that, this is the quantity that is required, through a POS system, they send this database, the data that they entered into the database of Aadhaar through a biometric method. Then he gets the confirmation, after which he distributes the required ration, and the customer or the beneficiary gets a perfect bill for the quantity that they have received. And really a technological innovation, I can say that. And the way it's been shaping up there in Kakinada, surely it's going to be one of the success stories of its own kind. Ramakant, you also spoke to beneficiaries, some of the beneficiaries in the morning. From their point of view, yes, tell us. Yeah, I have the beneficiaries here. I mean, ఎంత సులభతరమైంది మా ఇది ఈ ఆధార్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఫోన్కి ఎస్ఎంఎస్ వస్తున్నాయి. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సరుకులన్నీ వస్తున్నాయో సమాచారం ఇదివరకు అయితే మేము షాప్కి వెళ్ళి తెలుసుకునే వాళ్ళమండి. पदे कैसा लग रहा है नया सिस्टम? ये आधार आने के बाद मोबाइल पर में समाचार आता है, एसएमएस आने के बाद समाचार मिलता है हम लोग को. उसमें रेशन के पास, डीलर के पास चावल, शक्कर, तेल आने का समाचार मिलता है. पहले तो समाचार नहीं मिलता सी, डीलर के पास आके 3-4 बार घूम के जाना पड़ता सी. लेकिन अभी वो प्रॉब्लम नहीं. हम लोग को क्या बायोटेक मशीन से, फिंगरप्रिंट से हम लोग को पूरा सामान मिलता है. चावल, शक्कर पूरा. Well, Sakal, to sum up, it's actually, see, they can arrest the malpractices, because earlier somebody else used to draw the ration on their names, but now that's all gone. All right. Thank you so much, Ramakant, for joining us from Kakinada. And let's quickly go across to Dudu in Rajasthan and talk to Sudhakar Das, our correspondent, to tell us how it's what is the lineup of events there, Sudhakar, since morning? When do we expect the formal launch? When is Prime Minister expected? And also, what's the kind of build-up, the expectations as far as the people, the beneficiaries there in Dudu in Rajasthan are concerned, as far as the launch of this particular scheme is concerned? जी बिल्कुल सकल, अभी हम जो प्राइम मिनिस्टर और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके चौपर की आवाज़ सुन सकते हैं. और थोड़ी सी हलचल आप जो तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, आम लोग, उनके भीतर भी देख सकती हैं. और काफ़ी बेसब्री से वो सवेरे से ही इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री का और सोनिया गांधी का. और अगले 5-7 मिनटों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. और एक भारी भीड़ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई है. और निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक मौका सरकार के लिए है, DAI अथॉरिटी के लिए है. 21वां करोड़ आधार कार्ड आज दिया जाएगा. सिर्फ 2 साल पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज इसको सेवाओं से जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब आधार कार्ड है जिनके पास, वो सरकारी सेवाओं का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं. डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है उनके खातों में. तो एक बड़ी उपलब्धि है. ख़ासतौर पे बिचौलियों को इसमें से हटाया जा सकता है. जो बोगस लोग तमाम सूचियों में, चाहे BPL सूची हो, चाहे वो अन्य कोई सूची हो, उसको बोगस लोगों को हटाया जा सकता है. इसके अलावा भ्रष्टाचार को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका रहेगी. 51 जिलों में आज ये योजना शुरू की जा रही है, आधार पर आधारित जो सेवाएं हैं. और इसके साथ ही आज यहाँ दुदू के साथ जो 5 अन्य देश के ज़िले हैं, वहाँ ये शुरू किया जाएगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और यूपी अध्यक्ष इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे. तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मौका ज़रूर है आधार कार्ड के लिए, आम लोगों के लिए भी, क्योंकि आम लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सकल, Also, if you could put in perspective how as far as the integration of various government schemes, for example, public distribution system, for example, pension welfare schemes, will take place on the Aadhaar platform. जी बिल्कुल. अमूमन पहले क्या होता था सकल, ये पैसे राज्य सरकार तक आते थे, उसके बाद फिर राज्य सरकार के जरिए जिलों तक पहुंचते थे, जिलों के बाद जो तमाम विभागों के जरिए फिर वो आम लोगों तक पहुंचते थे. ऐसे में कई बार वो पैसे रास्ते में रुक जाते थे या फिर जिनको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता था. अब ये सीधे जनता के साथ जुड़ सकेंगी ये सेवाएं. जिनके पास आधार कार्ड है वो अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे और उसके फिंगरप्रिंट्स का मिलान, जो डाटाबेस है, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा डाटाबेस है,
उसके साथ किया जा रहा, उनके साथ मिलान किया जा सकेगा और अगर सही लाभार्थी है तो उसके अकाउंट में सीधे वो पैसा आ जाया करेगा। तो समय की भी बचत होगी, भ्रष्टाचार, बिचौलिए, ये तमाम चीज़ों को खत्म किया जा सकेगा। तो एक बड़ी कामयाबी ज़रूर है। जब 2 साल पहले आधार कार्ड बंटना शुरू हुआ था तो कम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, लेकिन नंदन नीलकेनी, उनकी टीम को भरोसा था, केंद्र सरकार को भरोसा था कि इसके माध्यम से जो सेवाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है, सरकार सीधे आम जनता से जुड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उसी को दिखाता है आज के कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं वही चीज़ आगे बढ़ाई जाएगी। और आने वाले समय, जैसा नीलकेनी जी ने बताया कि अगले 2 सालों में 2014 तक हर एक दूसरे आदमी के पास आधार कार्ड होगा और जल्द ही तमाम देशवासियों के पास। तो निश्चित तौर पे इसका फायदा दूसरी और सेवाओं में भी उठाया जा सकेगा। कुछ राज्यों में बैंकिंग सुविधाएं, यहाँ तक कि एयरटेल ने भी हाल में कहा है कि वो आधार कार्ड के आधार पर मोबाइल कनेक्शंस भी देगी, तो तमाम दूसरी सुविधाएं भी मिलने लगेगी। एक आदमी को पहचान और वैधता मिलेगी इस आधार कार्ड। Sudhakar, how is the common man there in Dudu looking at it? Does he know the benefits from the beneficiaries' point of view, since we can see a large the crowd behind you, in fact, teeming crowd behind you there at the launch of this scheme? How are the beneficiaries really looking at it? The grassroots level people in Dudu, how are they going to benefit? कई लोगों से बात करने की, कई लोग हैं हमारे साथ। अभी हम लोग बात कर रहे थे। संगीता जी, आपका आधार कार्ड क्या बना है और आपके इलाके में लोगों के आधार कार्ड बने हैं? हाँ, हमारे इलाके में बहुत से लोगों के आधार कार्ड बने हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप आशा सहयोगिनी है शायद, इसका आशा सहयोगिनियों को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए, कितना फ़ायदा मिलने की उम्मीद, किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? हाँ, सभी आशा सहयोगिनियों को, अधिकतर बुजुर्गों को, सभी को, बच्चों को, सभी को जोड़ने की इसमें संभावना है और सभी के जुड़ भी रहे हैं और शायद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ही मिलेगा सभी को। ज़्यादातर अनपढ़ लोगों को, सभी को जो जानते नहीं थे अपनी वो बैंक के हिसाब से, उनको सभी को ज़्यादा आधार कार्ड में उसमें समस्या वो नहीं होगी अब आगे। आपके इलाके में लोगों के आधार कार्ड बने हैं क्या? हाँ, बने हैं हमारे इलाके में। कम से कम 500 से ज़्यादा आधार कार्ड बन गए हैं। आपका क्या नाम है? हमारी शांति देवी साहू। आपका आधार कार्ड बना है? हाँ, हमारे आधार कार्ड बना है। उसके ऊपर बहुत हम सहयोग करे हैं और बुला ढाणीकार यानीकार सबका बुला के आधार कार्ड बढ़ाया है। अभी बढ़ रहा है, 20 तारीख तक ही था तो 25 तारीख तक बढ़ा दिया। आपको लगता है फायदा होगा उससे? फायदा होगा उससे। आपका आधार कार्ड बना है, आपका क्या नाम है? राम कन्या देवी। आपका आधार कार्ड बना है? अभी तो बन रहा है और बन भी गए हैं और वो उसमें 211 कार्ड तो बन चुके हैं रेलाना पंचायत में और उससे खूब फायदा है। और दूसरी बात क्या है कि 25 तारीख तक तो सबका बन जाएगा। तो बिल्कुल आपने सकल सुना, काफ़ी लोग जो यहाँ आए हैं उनके आधार कार्ड बन चुके हैं और ख़ासतौर पे उन जिलों को चुना गया है जहाँ 80% से ज़्यादा, यहाँ दुदू की अगर बात करें तो यहाँ 90% से ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और लोगों को उम्मीद भी है, जैसा आपने सुना होगा कि उनको लग रहा है कि फ़ायदा काफ़ी मिलेगा उनको। और ख़ासतौर से जो सीधे कैश ट्रांसफ़र की बात है उनके अकाउंट में, तो ये एक बड़ी बात है। उनको लगता है कि बीच में जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो सकेगा और जो सरकार की सुविधाएँ सीधे इन तक पहुँच सकेंगी। The benefits of the schemes should percolate to the grassroots level. Sudhakar, now what is the latest? We believe that Prime Minister Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi, have they arrived, or what's the latest as far as the events, the lineup of the events are concerned? We expect them in any moment from now? जी बिल्कुल सकल, मैं आपको थोड़ा सा पैन करके अपने कैमरामैन सुरेंद्र यादव जी से कहूँगा वो दिखाएं। यहाँ भीड़ काफ़ी है, एक स्क्रीन भी लगाया गया है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में जहां ये सेवाएं आज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री और यूपी अध्यक्ष। और हमें ये बताया गया कि हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष का, और थोड़ी देर में वो अगले करीब 5 मिनट में वो मंच पे पहुंच जाएंगे और करीब अब से 5-7 मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि पहले जो 21वें करोड़ व्यक्ति उसको आधार कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद ये सेवाएं जो राजस्थान में 5 योजनाओं को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया है, उसके अलावा कुछ ज़रूरतमंदों को ट्राईसाइकिल वितरण करने जैसे कार्यक्रम भी है और एक बड़ा मकसद Sudhakar, I'll just interrupt you here. You're watching live telecast from Dudu in Rajasthan. Prime Minister Dr. Manmohan Singh
Chief Minister and UPA Chairperson Sonia Gandhi have already arrived at Dudu in Rajasthan to formally launch Aadhaar-enabled service delivery in Dudu. And this, of course, marks the second anniversary of the Unique Identification Authority of India, the nationwide Aadhaar cards. Sudhakar, it's over to you. We believe the Prime Minister and UPA Chairperson Sonia Gandhi, along with Chief Minister Rajasthan, they've arrived. जो बिल्कुल आप सीधे देख पा रहे होंगे वो आ रहे हैं, कुछ ही पल में मंच पे पहुंच जाएं। मैं आपको 2 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। सकल 2 साल पहले तेंभली महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है नंदुरबार जिले में, वहां पहले रंजना सोनवान एक महिला को आधार कार्ड दिया गया था। उसके बाद 21 करोड़वें व्यक्ति को आज आधार कार्ड दिया जाएगा। 23 करोड़ लोग 23 करोड़ लोग अब इस योजना के तहत अब तक पंजीकरण करा चुके हैं और लगातार इसकी कोशिशें जारी है। हालांकि अभी तक ये ऐच्छिक तौर पे है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो पंजीकरण करा सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसको जरूरी भी बनाया जा सकता है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होते दिख रहा है। साफ तौर पे सीधे तौर पे दिख रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हर एक साल भारत सरकार देती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे फर्टिलाइजर पे हो, चाहे LPG पे हो, या फिर फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की सरकार की योजना है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं में जो एक्चुअल जिसको पहुंचना चाहिए, जो वास्तविक लाभार्थी है, उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी और उस तक सेवाएं सीधे पहुंचाई जा सकेंगी। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा। सकल 14 करोड़ करीब गैस कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन है और इसको अगर एक बार आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, जैसा तमाम विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं, तो कई जो बोगस कनेक्शन हैं उनको अलग किया जा सकेगा और कई जरूरतमंद जिनके पास अपनी वैध पहचान नहीं थी, पता नहीं था, उनको वो कनेक्शन मुहैया कराई जा सकेगी। Also, as far as the public distribution system and the loopholes, they are doing away with the bottlenecks in the PDS is concerned. Aadhaar is going to play a very significant role there as well. बिल्कुल बिल्कुल, वो जब तक आधार कार्ड जिस व्यक्ति को मिला हुआ है उसका अंगूठा नहीं पहुंचता है सेंसर के पास, उसकी पहचान नहीं होती है जब तक डाटाबेस के माध्यम से, तब तक राशन जारी नहीं होगा। मतलब काला बाजारी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म की जा सकती है इस सेवा के माध्यम से। तमाम करीब 6.5-7 करोड़ विभिन्न राज्यों को अगर मिला के देखें तो BPL कार्ड धारक है, तो उन BPL कार्ड धारक में असली व्यक्ति तक PDS की सामग्री, पेंशन स्कीम का फायदा, छात्रवृत्ति स्कीम का फायदा, तमाम जो दूसरी और योजना है उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं सर रहा है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो भी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग कर सकेगी। इसके अलावा आने वाले समय में कई और योजनाएं हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड जैसी परियोजना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ने की बात है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा मकसद जरूर हासिल किया और एक ऐतिहासिक दिन आज कहा जा सकता है UIDAI के लिए, आधार कार्ड के लिए और केंद्र सरकार के लिए। Right, Sudhakar. Thank you very much for joining us from there. We'll of course get back to you. Right now, we of course know that Prime Minister Dr. Manmohan Singh and UPA Chairperson Sonia Gandhi are launching Aadhaar-enabled services delivery in Dudu in Rajasthan. They've just arrived there. Once again, for the ceremony, we take you there to catch the ceremony live. इस समय हम आपका स्वागत कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर से कुछ ही दूर दूदू से, जहां इस शुभ अवसर पर आधार समर्थित सेवाओं का देशव्यापी शुभारंभ हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस समारोह को अपनी मौजूदगी से सुशोभित कर रहे हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अभी इस अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरे हैं और इस समय मुलाकात कर रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से। इनके अलावा आज के इस समारोह में अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी, केंद्रीय योजना राज्य मंत्री अश्विनी कुमार, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट। इस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जयपुर से कुछ ही दूर स्थित दूदू में बने इस पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं, उस विशिष्ट आयोजन के लिए जिसमें आधार की दूसरी वर्षगांठ का आयोजन किया जाना है।
रंग बिरंगे परिधानों में सजी ये महिलाएं दूर दूर से आई हैं इस विशिष्ट आयोजन के लिए, जबकि सही पात्र को उनका हक दिलाने के लिए आधार समर्थित सेवाओं की प्रदायगी का देशव्यापी शुभारंभ इस आयोजन के माध्यम से होना है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रेल मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी इस समय मंच पर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा, और इस समय हम देख सकते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम, भारत के प्रत्येक निवासियों को पहचान प्रदान करने और प्राथमिक तौर पर प्रभावशाली जनहित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआत में विशिष्ट पहचान परियोजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया। विशिष्ट पहचान के विचार पर पहली बार 2006 में चर्चा कर तब काम शुरू किया गया, जब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा के नीचे बसे परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना 3 मार्च 2006 का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया। और यूआईडी महानिदेशक श्री राम सेवक शर्मा जी, आप सभी सम्मानित अतिथिगण मंच पर हमारे बीच हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। सम्मानित अतिथियों से निवेदन करना चाहेंगे अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे, जोरदार तालियां बजाकर एक बार तालियों के माध्यम से हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज के इस ऐतिहासिक भव्य समारोह का शुभारंभ हम करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। श्री नंदन नीलेकणी जी। देवियों एवं सज्जनों, आज हम आधार की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 2 वर्ष पहले 29 सितंबर को पहला आधार महाराष्ट्र में जारी किया गया था। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम जी ने भी आम आदमी के हित में आधार का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने में समर्थन दिया है। मुझे यकीन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के देखरेख में आधार परियोजना राजस्थान में सफल होगी। मैं इस मंच पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वर्ष 2014 तक हमारा लक्ष्य 60 करोड़ निवासियों को आधार संख्या उपलब्ध करना है। तकनीकी काम के लिए भारत विश्व भर में मशहूर है। आधार परियोजना में लोगों को लाभ पहुंचाने में सरकार उत्तम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक बार फिर यहां इस अवसर को यादगार बनाने और इसमें भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नंदन नीलेकणी जी। और अब भारत गणराज्य के वित्त मंत्री माननीय श्री पी चिदंबरम जी से अनुरोध करना चाहेंगे अपना शुभ संदेश हमें प्रदान करें। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, देवियों और सज्जनों,
आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आधार एक विशिष्ट पहचान नंबर है। हमारा लक्ष्य है कि भारत में प्रत्येक निवासी के पास एक आधार नंबर होना चाहिए। आधार का सबसे अधिक लाभ गरीबों के होगा। हमारी सरकार गरीबों को संरक्षण देने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आधार नंबर होगा तो हम छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। यदि आधार नंबर होगा तो लाभार्थियों को एलपीजी और केरोसिन पर सब्सिडी पहुंचा पाएंगे। आधार नंबर होने पर हम विभिन्न सरकारी स्कीमों के लाभ पात्र लोगों के पहचान कर पाएंगे। अब तक शुरू किए गए पायलट कार्यक्रमों से ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार और लाभ भोगियों के लिए आधार एक वरदान के समान है। आधार होने से हम डुप्लीकेशन और धोखे से बच सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज 21 करोड़वां आधार जारी किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही भारत में प्रत्येक निवासी को आधार नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय। और हमारे अपने आंगन के माननीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विनम्र निवेदन, पावड़ों का स्वागत करें, अपनी आवाम, अपने जन समूह को संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, परम श्रद्धेय हमारी महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी, मुकुल वासनिक जी, अहलुवालिया जी, नंदन नीलेकर्णी जी, सचिन पायलट जी, नमोनारायण मीणा जी, अश्विनी कुमार जी। दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और आधार योजना के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने का शुभारंभ हो रहा है। इस मुबारक मौके पर हमें राजीव गांधी जी की याद आती है, जिन्होंने सपना देखा था इस देश के लिए 21वीं सदी में ले आने का। वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। जिस प्रकार से आईटी का उपयोग हुआ, कंप्यूटर आए, इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन की सेवाएं, चारों ओर जो उदारीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से नई नीतियाँ बनी, पूरा सिनेरियो आज देश का बदल चुका है। इस बात की हमें जानकारी है। आधार को भी मैं उसी प्रोजेक्ट के रूप में मानता हूँ जिसके कारण से हर देशवासी को, हर प्रदेशवासी को, हर व्यक्ति की पहचान का कार्ड, पहचान का आधार मिलेगा। आप सबको मिलेगा। मैं आह्वान करना चाहूँगा आप सबसे, हम निकटतम स्टेशन में जाएं, आधार आधारित पहचान पत्र बनवाएं, जिससे कि हमें हमेशा के लिए अपनी पहचान कायम करने का मौका मिल सके। और यही हमारा स्वाभिमान भी होगा। और इसके माध्यम से जो सेवाएं मिलेगी, जिसके लिए राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया बेचते दिल्ली से तो 15 रुपये से पहुँचता गाँव के अंदर। मैं समझता हूँ कि आधार योजना साकार रूप लेने के बाद में पूरा पैसा जितना दिल्ली से भेजा जाएगा, पूरा पैसा गांव में ढाणी तक पहुंच सकेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे सामने होगी और आम आदमी को, गरीब को उसका लाभ पूरा मिल सकेगा। इस मौके पर मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, खाली इतना ही मैं कहूँगा, आज 21वां करोड़वां कार्ड सोनिया जी आज देंगी, ये हमारे लिए बहुत फख्री की बात है। और साथ में इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने भी निर्णय किया है कि
कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं 1 अप्रैल 2013 को लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना आधार से जोड़ दी जाएगी और दूदू, चौमू और शाहपुरा तहसील को पायलट आधार पर पीडीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा आधार प्रोजेक्ट के माध्यम से। और इसके साथ में मैं भी घोषणा करता हूं कि जो स्कीम हमने बनाई है 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देने का, अगले शिक्षा सत्र से 1 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रतिमाह 5 वर्ष तक उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी आधार प्रोजेक्ट के आधार पर मिलने लग सकेगा। हमारे राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को भी अगली 1 फरवरी 2013 से आधार नामांकन के माध्यम से ही वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ मैं ये भी इस मौके पर कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने निर्णय किया है 10 सेवाओं के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य कर चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय किया है। वो सेवाएं होगी वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी बिजली के कनेक्शन, संपत्ति पंजीकरण, भू अभिलेख नामांकन और नकल, इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज विभाग की व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्तियाँ और आर्मी लाइसेंस, ये तमाम 10 काम आने वाले वक्त में चरणबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार आधार आधारित करेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और समय को देखते हुए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा, आप लोग लाखों की संख्या में पधारे हैं, आप संकल्प लेके जाएं। आधार अभियान को हमें कामयाब करना है, राजस्थान के घर घर में पहुँचाना है। सबके अंगूठे के और उंगली के निशान और आँख की पुतलियों के निशान देने हैं, जिससे कि हमेशा के लिए आपकी पहचान बन जाएगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हमारे महान नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसा कि हमें विदित है, भारत में आधार पहचान पत्र 23 करोड़ नागरिकों के पंजीयन के साथ 21 करोड़ लोगों के हाथ में है। हम आमंत्रित कर रहे हैं 21 करोड़वें आधार पत्र वितरण के लिए यूपीए अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी को। ये 21 करोड़वां आधार पत्र राजस्थान के उदयपुर जिले के ग्राम पुरावाड़ की श्रीमती वाली बाई को दिया जा रहा है। ये है उदयपुर जिले के ग्राम पुरावाड़ की श्रीमती वाली बाई। आधार की सफलता का श्रेय बहुत से लोगों के परिश्रम और लगन का परिणाम है। प्रशासन में आधार के प्रयोग को प्रचलित करने में असाधारण योगदान के लिए यूआईडी आधार प्रशासनिक पुरस्कार से सम्मानित करता है और आज ये पुरस्कार 9 व्यक्तियों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार डॉक्टर अमिताभ कौशल, जिला मजिस्ट्रेट रामगढ़, झारखंड को दिया जा रहा है। आपने अपने जिले में बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम जैसे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन और छात्रवृत्तियों को आधार से जोड़ने का कार्य किया है। द्वितीय पुरस्कार सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद। द्वितीय पुरस्कार सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद, जिला मजिस्ट्रेट पूर्व गोदावरी को दिया जाता है। आपने पूर्व गोदावरी में आधार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़ने का कार्य किया है। द्वितीय पुरस्कार के संयुक्त विजेता हैं श्री ए बाबू, संयुक्त कलेक्टर, पूर्व गोदावरी, आंध्र प्रदेश। आपने भी पूर्व गोदावरी में आधार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जोड़ने का योगदान किया है। तृतीय पुरस्कार श्री कुणाल कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने का कार्य आपने किया है। जोरदार तालियां बजाकर हमारे इन दीप स्तंभों का सम्मान करें
अगला पुरस्कार श्री हरप्रीत सिंह, आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है। आपने आधार से राशन भुगतान का पायलट पूर्व गोदावरी में सफलतापूर्वक किया है। अगले पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेश अग्रवाल, सचिव आईटी महाराष्ट्र। आपने महाराष्ट्र में राज्य निवासी डाटा संग्रह स्थापित किया है। अगला पुरस्कार श्री एपी होता, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीसीआई को दिया जा रहा है। आपने आधार भुगतान सेवा स्थापित करने में और आधार प्रमाणीकरण सेवा के पायलट में यूआईडी को सहयोग दिया। अगला पुरस्कार श्री पी जयदेवन, मुख्य प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया जा रहा है। आपने मैसूर में एलपीजी सिलेंडर वितरण के पायलट कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। झारखंड में हुए आधार प्रमाणीकरण सेवा पायलट के लिए सम्मानित किया जा रहा है श्री बिमल प्रसाद शर्मा, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और अब हम भुगतान प्रणाली आधार की एक प्रदर्शन यहाँ देखेंगे। आधार भुगतान प्रणाली का उद्देश्य है देश के उन निवासियों को जो बैंक से दूर होने के कारण बैंक सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन्हें बैंक के साथ जोड़ना। माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग संवाददाता हमारे दरवाजे पर बैंक को पहुँचाता है और वो सब सेवाएं जिनसे हम जुड़े हैं उनका भुगतान आसानी से करने में हमारी मदद करता है। इस प्रदर्शन में 4 योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी अपनी निर्धारित राशि को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ग्राम मालेड़ा से लाली देवी अपनी सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन की राशि प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा प्राप्त करेंगी। और अब ग्राम किशनपुर की श्रीमती मीरा देवी अपना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वेतन मजदूरी यूपीए की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगी। और अब ग्राम दूदू के बनवारी लाल अपनी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की राशि केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी द्वारा प्राप्त करेंगे। आप सब यहाँ देख रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं, यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगी हुई मशीन के माध्यम से निवासी अपना आधार नंबर और उंगली का निशान आधार के विशाल डाटाबेस को भेजता है। यदि उंगली का निशान और आधार नंबर मेल खाते हैं, डाटाबेस निवासी की पहचान की पुष्टि कर देता है और पहचान सिद्ध हो जाने पर निवासी अपने बैंक खाते में जमा राशि बैंकिंग संवाददाता की मदद से आसानी से ले लेता है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की राशि ग्राम गैजी के बिरदाराम जी, जिन्होंने अभी अभी इस माइक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से अपनी पहचान की पुष्टि यहां पर की है, इन्हें प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। ये हैं ग्राम गैजी के बिरदाराम जी। और अब देश भर में आधार विभिन्न योजनाओं से जुड़कर देशवासियों को लाभ पहुंचा रहा है। रामगढ़ झारखंड में मनरेगा मजदूरी के वितरण से, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, मैसूर कर्नाटक में एलपीजी सिलेंडरों के वितरण से, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पेंशन संवितरण से और त्रिपुरा में वृद्धावस्था पेंशन संवितरण से। आप सब अपने आसपास लगे टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे देश के इन विभिन्न भागों में हो रहे प्रयासों का सीधा प्रसारण।
जी, रामगढ़ के मरार पंचायत में यहाँ देखिए कई लाभुक कतार में खड़े हैं और कुछ लाभुक यहाँ बैठे हुए भी हैं। यहाँ एटीएम, माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है। मनरेगा के तहत मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा की व्यवस्था यहाँ की गई है। इनके सत्यापन की जांच यहाँ की जा रही है और सही व्यक्ति के पाए जाने पर इनको भुगतान की राशि दी जा रही है। भुगतान की राशि लेकर लौटी एक महिला से आइए एक लाभुक से हम बातचीत करते हैं कि अब आपको इस प्रकार की जो सुविधा दी जा रही है उससे आपको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है? बहुत सुविधा मिल रही है। पहले हम लोग पैसा उठाते थे बैंक से या नहीं तो पोस्ट ऑफिस से उठाते थे तो बहुत दिक्कत से उठता था। घंटों लाइन लगने पर भी नहीं हम लोग पैसा उठा पाते थे और ऐसा होता था कि हम लोग किसी को फार्म भरने को पैरवी करता था तो लाइन में खड़े होते होते तो वही तो दिक्कत होता है कि दो दिन हम लोग लाइन में खड़े रहते थे, फिर भी हम लोग नहीं पेमेंट उठा पाते थे। इस होता है कि दो दिन हम लोग के काम लगा होता है, फिर भी हम लोग नहीं उठा पाते हैं अपना पैसा और दूसरे दिन जाते हैं तब हम पैसा अपना लेके आते हैं। कल हमारा 2 दिन हम लोग के काम मार खा जाते हैं और इस तरह से कैसे हम लोग के गुजर कर सकेंगे। तो ये हो गया हम लोग के सावधान कि हम लोग के गांव के अपना बगल में इस तरह हो गया है कि अपना अंगूठा लगाए, अपना पैसा आपने खुद उठा सकते हैं, डिप्टी भी कर सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। इससे हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है। आप सब देख रहे हैं देश के विभिन्न भागों में हो रहे प्रयासों का सीधा प्रसारण यहाँ इस टीवी स्क्रीन पर। हम देख रहे हैं देश के विभिन्न भागों में झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में हो रहे प्रयासों का सीधा प्रसारण। Welcome to the port town of Kakinada. This is one of the 47 ration shops being identified under the Aadhaar-enabled public distribution delivery for distribution of ration. You can see how after receiving an SMS, a beneficiary on his mobile phone comes here to the ration shop and with the biometric identification, the entire data is sent to the main database of Aadhaar and then he goes to the ration shop to collect his ration. कैसा लग रहा है नया सिस्टम? बहुत अच्छा लगता है। मेरे मोबाइल में SMS में आता है, उसके अंदर तो समाचार मिलता है। आपके डीलर के पास है चावल राशन पूरा समाचार मिलता है। पहले तो नहीं मिला था, डीलर के पास आगे 1 से 3 बार घूम के जाता सी, लेकिन अभी वो परेशानी नहीं है। बायोटेक मशीन से फिंगरप्रिंट से हम लोग पूरा राशन मिलता है और राशन में बिल भी मिलता है। वो चावल का दाम, शक्कर का दाम, तेल का दाम, दाल का दाम भी मिलता है। कोई भी इसी में धोखा नहीं कर सकता। क्या है, मेरा राशन मेरे को मिलता है, मेरा फिंगरप्रिंट से मेरे को मिलता है। कोई भी आएगा फिंगरप्रिंट लाएगा तो नहीं चलेगा, ये तो धोखा नहीं चलता। बहुत अच्छा है। Okay, let's talk to another beneficiary. ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా? మాకు ఇప్పుడే ముందు మీద చాలా బాగుందండి. ఇప్పుడు కూడా రేషన్ ముందు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా బాగుందండి. ఇన్నాళ్ళ మీద ఇప్పుడు సిస్టమ్ బాగుంది. మా కార్డు ఇస్తున్నారు, కార్డు మీద స్లిప్ మీద ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము చూసుకుని అప్పుడు డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చి మేము రసీదు పట్టుకెళ్తున్నామండి. మా దృష్టిలో మాత్రం ఇప్పుడు చాలా చాలా బాగున్నదని మేము ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా చాలా। हम देख रहे थे किस तरह काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निवासी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आधार कार्ड के माध्यम से अंगूठे से अपनी पुष्टि करके माइक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से। आइए चलते हैं मैसूर कर्नाटका में। We are now at Venus Gas Services, one of the LPG distributors for Indian Oil in Mysore. Well, customers are coming in here to get their Aadhaar number linked to their existing customer ID. A one-time authentication is done at the agency where biometrics are matched against the Aadhaar database. Let's now take a look at the delivery process. As you can see, we are now at the customer's residence now. The delivery person enters the customer's ID on the portable device which has been given to him. After this, he enters the name of the resident and asks for a fingerprint scan.
Through mobile connectivity, the details of the customer are authenticated against the Aadhaar server. Once approval is received, as we can see in just a bit, the bill is generated and given to the customer and the money is received. Now, this Aadhaar-based LPG delivery pilot has been initiated by 3 oil marketing companies, Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The target consumer base for this pilot is 80,000 and about 50,000 deliveries have been made so far. The much-awaited next phase of this pilot will scale up operations in the entire district, covering 30 distributors and around 6.5 lakh consumers across Mysore district. Well, the main objective of this entire... हम देख रहे थे किस तरह मैसूर कर्नाटक में एलपीजी सिलेंडर का वितरण घर पर किया जा रहा था। अंगूठे के निशान से महिला ने आधार कार्ड के माध्यम से पुष्टि की और एलपीजी सिलेंडर का वितरण यहाँ किया जा रहा था। और अब चलते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पेंशन वितरण के योजना का लाभ किस तरह से लिया जा रहा है। नमस्कार, औरंगाबाद में आपका स्वागत है। औरंगाबाद के तकरीबन 12,000 लाभार्थियों को आधार के सेवा के असमर्थित सेवा प्रदायी के अंतर्गत तकरीबन यहाँ पे जो है भुगतान की राशि मिल रही है। हालांकि ये सभी लाभार्थी जो है उनके आधार नंबर बैंक से जुड़े हुए हैं और ताकि सबकी राशि उनके बैंक में जमा हो जाती है। मेरे पीछे की आप देख सकते हैं कि एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है जिसके पास एक माइक्रो एटीएम है। इस माइक्रो एटीएम के जरिए जो है जो लाभार्थी है उनकी आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है ये पैसों की राशि है उन लाभार्थियों को दी जाती है। जैसे कि देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे लाभार्थी है जो पैसे की राशि इनसे स्वीकार रही है। आइए पूछते हैं महिला लाभार्थी से कि किस प्रकार से इनको इस पूरे प्रक्रिया का लाभ मिल रहा है। किस प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है इस प्रक्रिया का? आम्ही ते कलेक्टर ऑफिसला जायचं आम्हाला तरच होई, सेंटरला जायचं चक्र मारिता आम्हाला तरच होई। आधार कार्डानं आम्हाला फार घरपर्यंत पैसे येऊ राहिले तर आम्हाला लय आधार आहे। तो जैसे कि देख सकते हैं महिला साफ कह रही है कि सबसे पहले उनको कई सारे सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, लेकिन अब जबकि आधार की ये नई योजना लागू हुई है उसके बाद जो है पैसे उनके घर पर मिल रहे हैं। हालांकि काफ़ी सहूलियत मिल रही है इस बुजुर्ग महिला को। हम देख रहे थे किस तरह आम निवासी को, आम आदमी को अपने पहचान की पुष्टि करने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। वहीं आधार कार्ड के माध्यम से वो आसानी से अपनी राशि माइक्रो एटीएम मशीन के माध्यम से प्राप्त कर रहा था। और अब हम चलते हैं त्रिपुरा में वृद्धावस्था पेंशन वितरण के कार्यक्रम को देखने के लिए। और अब हम आपको दिखा रहे हैं सुदूर त्रिपुरा के जनजातीय इलाके की एक झलक, जहां वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आधार सत्यापन के जरिए किया जा रहा है। आधार जिसके माध्यम से प्रत्येक भारतीय निवासी की एक विशिष्ट पहचान संख्या को उसके जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के साथ जोड़ा जाना है, ताकि वो पूरे देश में कहीं भी अपनी पहचान स्थापित कर सके और लाभ और सेवाओं का उपयोग कर सके। हम देख रहे हैं कि किस तरह ये महिला अपनी पेंशन की राशि आधार सत्यापन के माध्यम से प्राप्त कर रही है। आधार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनियाद, सही मायने में आधार के नाम से अभिव्यक्त होने वाली विशिष्ट पहचान संख्या भारत के निवासियों की सार्वभौमिक पहचान के बुनियादी ढांचे के रूप में एक नींव है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम देख रहे थे देश के विभिन्न भागों में हो रहे प्रयासों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपकी अपनी राजस्थान सरकार राज्य के तकनीकी विकास में नया कदम उठाते हुए राज्य के मेधावी छात्रों को 56,000 लैपटॉप प्रदान करने की योजना का आज शुभारंभ दूदू के इस प्रांगण से, इस ऐतिहासिक भव्य समारोह से करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में जयपुर जिले में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आज इस समारोह में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं। पहला लैपटॉप दिया जाता है सुश्री अनुजा गुप्ता को। अनुजा ने विज्ञान में 94.4% अंक प्राप्त किए हैं और राज्य की मेरिट में अपना स्थान बनाया है। ये हमारे अपने जयपुर जिले की राजस्थान की बेटी
हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। जोरदार तालियां बजाकर इन्हें बधाई दें। दूसरा लैपटॉप शुभम विजय को दिया जाता है, जिन्होंने वाणिज्य में 92.8% अंक प्राप्त किए हैं। और सुश्री आसिमा वर्मा, जिन्होंने कला में 90.6% अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें तीसरा लैपटॉप आज यहाँ इस समारोह में दिया जा रहा है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं अत्यंत सम्मान के साथ यूपीए अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से संबोधित करें इस जन समुदाय को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी, सीपी जोशी जी, अशोक गहलोत जी, अश्विनी कुमार जी, मुकुल वासनिक जी, सचिन पायलट जी, नंदन नीलेकानी जी, मुंतेक सिंह अहलूवालिया जी, नमो नारायण मीना जी, सभी उपस्थित नेतागण, उपस्थित अतिथिगण, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, मुझे खुशी है कि आधार योजना की दूसरी सालगिरह आप सबके साथ मना रहे हैं। जब 2 वर्ष पहले हमने महाराष्ट्र के टेम्बली गांव से यह यात्रा शुरू किया, उस समय हमने संकल्प लिया था कि देश में पहली बार हम हर नागरिक को आधार के जरिए पहचान का हक देंगे और आधार हर नागरिक का अधिकार बनेगा। 2 वर्ष की यात्रा में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 25 करोड़ लोग इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आज 21 करोड़वां नंबर राजस्थान के एक व्यक्ति को दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले कुछ महीनों में राजस्थान के हर व्यक्ति को आधार कार्ड मिल जाएगा। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में आधार कार्ड देना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया भर में यह अपनी तरह की सबसे बड़ी सामाजिक समावेश परियोजना है। इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको यह जानकारी देनी चाहिए इस योजना को क्यों शुरू किया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने इसे अपने प्रमुख कार्यक्रमों में क्यों शामिल किया। राजीव जी का सपना था कि आधुनिक तकनीक की ताकत का इस्तेमाल आम आदमी की सेवा के लिए हो। उनके पास वह निगाह थी जिसने देश भर में टेलीफोन के पीसीओ बूथ की कतार खड़ी की, टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया, जिसे आज गांव-गांव में मोबाइल फोन और कंप्यूटर की वजह से हर नागरिक को दैनिक जीवन में तमाम सुविधाएं हासिल हो रही है। आधार योजना उनके इसी सपने का अगला चरण है। इसके पीछे की सोच एकदम स्पष्ट, एकदम सरल है। आम आदमी को उसकी पहचान का प्रमाण देना। लेकिन आधार सिर्फ पहचान का ही सबूत नहीं है। इसके जरिए हर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाएं हासिल करने के अपने हक का इस्तेमाल भी कर सकेगा। पूरी व्यवस्था में एक किनारे कर दिए गए हमारे गरीब बहन भाइयों को अपना अधिकार लेने में इससे सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा। इससे
ये भी सुनिश्चित होगा कि हक उसे ही मिलेगा जिसका वह है, और दूसरा कोई भी उसका हक मार नहीं पाएगा। यही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप भारत में जहाँ कहीं भी रहें, कहीं भी जाए, इसके ज़रिए अपनी पहचान के साथ साथ अपने अधिकारों को भी ले सकेंगे। इससे आम आदमी की ज़िंदगी में तेज़ी से बदलाव आएगा। इसके ज़रिए लोग बैंक का खाता खोल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, रसोई गैस ले रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र की सुविधाएं लेने के लिए आधार कार्ड को ही निवास का प्रमाण मानने के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में राशन की दुकानों से सामान आधार कार्ड के जरिए असली हकदारों को मिल रहा है। इससे सरकार को असली ज़रूरतमंद तक सब्सिडी पहुंचाने में मदद मिलेगी और रकम सीधे उस व्यक्ति के खाते में चली जाएगी। सरकार गरीबों के लिए सब्सिडी देने में कोई कमी नहीं करती है, लेकिन उसे असली हकदार तक पहुंचाने में कई परेशानियां आती हैं। आधार कार्ड इन सभी मुश्किलों को दूर करेगा और गरीबों को अपने हक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 2 साल पहले हमने एक संकल्प लिया था और आज उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। इस बीच हम अपने अनुभवों से सीख भी रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस योजना पर अमल इसी लगन, इसी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ होता रहेगा। मैं नंदन नीलेकानी और उनके सभी सहयोगियों को बधाई देती हूँ कि वे इस चुनौती को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में लगे हुए हैं। और अंत में वैसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को दूर दूर से यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ और साथ साथ दशहरा और ईद के लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद यूपीए अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। और अब हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से गुजारिश करना चाहेंगे, पधारें और संबोधित करें हम सबको। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, सेंट्रल मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री पी चिदम्बरम, डॉक्टर सीपी जोशी, श्री मुकुल वासनिक, श्री एमएस अहलूवालिया, श्री नंदन नीलेकानी, श्री अश्विनी कुमार, श्री एनएन मीना, श्री सचिन पायलट, भाइयों बहनों बुजुर्गों और नौजवान, आज से करीब 2 साल पहले सितंबर 2009 में महाराष्ट्र के एक दूर दराज जनजातीय गांव में पहला आधार नंबर जारी किया गया था। उस वक़्त यूपीए अध्यक्षा
श्रीमती सोनिया गांधी जी और मैं दोनों वहाँ मौजूद थे। तब से अब तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने देश भर में 24 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का नाम आधार नंबर के लिए दर्ज किया है। आज दूदू के एक निवासी को 21 करोड़ की संख्या वाला आधार कार्ड दिया गया है। आज हम देश भर में जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए आधार नंबर के इस्तेमाल की औपचारिक शुरुआत भी कर रहे हैं। इतने कम समय में हासिल की गई इन बड़ी उपलब्धियों के लिए मैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन श्री नंदन नीलेकनी और उनकी टीम को हार्दिक दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं उन सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ जिनको अभी कुछ देर पहले आधार प्रोजेक्ट में बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार मिले। भाइयों और बहनों, हमारी यूपीए सरकार ने हमेशा आम आदमी की भलाई और खुशहाली के लिए काम किया है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे गरीब भाई बहनों को और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों को तरक्की करने का पूरा मौका मिल सके। ये प्रोजेक्ट भी हमने इसी मकसद से शुरू किया है। इससे उन करोड़ों लोगों को ख़ास फ़ायदा होगा जो आज भी गरीबी, बेरोज़गारी और बीमारी से परेशान हैं। हमारे ऐसे भाई बहनों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने में या अपना कारोबार खुद करने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास अपनी पहचान साबित करने का कोई तरीका नहीं होता। यही नहीं, अपनी कोई पहचान न होने से उनके मान सम्मान में भी कमी आती है। आधार प्रोजेक्ट के ज़रिए हम इन मुश्किलों को मिटाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आधार प्रोजेक्ट हमारी यूपीए सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है और इसमें भारत के हर एक निवासी को एक ख़ास पहचान नंबर दिया जाएगा। ये पूरी दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। दुनिया भर के तमाम अन्य देश ये जानने और समझने के लिए भारत की ओर गौर से देख रहे हैं कि आधार नंबर किस तरह से भारत के निवासियों को लाभ पहुंचाएगा। आधार नंबर से बैंक में खाता खोलने में, नया टेलीफोन कनेक्शन लेने में, हवाई या रेल सफ़र के लिए टिकट लेने में और इस तरह के अन्य कामों में आम आदमी को मदद मिलेगी। छात्राओं को भी इससे ख़ास सहूलत होगी क्योंकि उन्हें बहुत से मौक़ों पर अपने परिचय पत्र दिखाना पड़ता है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही बहुत सी स्कीमों को ज़्यादा कारगर ढंग से लागू करने में भी आधार नंबर सहायता करेगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले छात्रों के लिए वजीफ़े, बुज़ुर्गों के लिए जो पेंशन और चिकित्सा लाभ को सीधे लोगों के खाते में आधार के ज़रिए भेजा जा सकेगा। अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि रियायती दर पर मुहैया कराए जाने वाले गैस कनेक्शन, डीजल और खाद उन सभी लोगों तक नहीं पहुंचते जो सही मानों में ज़रूरतमंद है। आधार नंबर के इस्तेमाल से इन फ़ायदों को नकद
राशि के रूप में दिया जा सकता है। इस नंबर के ज़रिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पैसा सही आदमी को ही मिले और बिचौलियों की भूमिका ख़त्म। ज़रूरतमंदों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने से बेईमानी और देरी की शिकायतें कम होंगी। भाइयों और बहनों, आधार स्कीम हमारे मुल्क के करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। मिसाल के तौर पर आजकल केंद्र सरकार तकरीबन 1,50,00,000 छात्रों को वजीफ़े देती है। 2 करोड़ से ज़्यादा बुज़ुर्गों को ओल्ड एज पेंशन दी जाती है और लगभग 3 करोड़ परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार महात्मा गांधी नरेगा के तहत मदद पाते हैं। हमारा मकसद है कि इस तरह के सभी लोग आधार नंबर का फ़ायदा उठाएं। मेरा मानना है कि आधार प्रोजेक्ट इस बात की भी मिसाल है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नई टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए राजीव जी ने जो सपना देखा था वो अब पूरा होता नज़र आ रहा है। हमारी सरकार शासन के काम में बेईमानी कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है। आधार स्कीम इस दिशा में एक अहम कदम है। आज त्रिपुरा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर केरल तक देश भर के निवासियों को आधार नंबर दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि साल 2014 तक तकरीबन 60 करोड़ लोगों को ये नंबर मिल जाएगा। जब हमने 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब हम लोगों का नाम तेज़ी से आधार के लिए दर्ज करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। आज हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में आधार के इस्तेमाल को अभी हमने परखा है। हम आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट का विस्तार देश के अन्य हिस्सों में भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान ने आधार परियोजना को खास अहमियत दी है। मैं गहलोत जी को, उनकी सरकार को और राजस्थान की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्थान में ये परियोजना और भी तेज़ी से लागू होगी। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आधार से जुड़े सभी लोगों को, श्री नीलेकानी और उनके साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत और लगन से भारत की तरक्की में योगदान देने का काम जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। 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 बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के आवाम की ओर से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे पहले कि टिक टिक करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ जाएं, आइए सदा के लिए सहेज लें इन पलों को, इन क्षणों को अपने हृदय में, अपने स्मृति कोश में। ये क्षण, ये पल, ये ऐतिहासिक भव्य समारोह और इसकी स्मृतियां लंबे समय तक हमारे अतिथियों के जहन में रहे, इसके लिए
हम अपने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, आपसे निवेदन करना चाहेंगे हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे अपना स्थान बनाए रखें, अभी कार्यक्रम शेष है। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यूपीए अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और धन्यवाद यूपीए अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी। आइए, कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। हम माननीय राज्य मंत्री सूचना और प्रौद्योगिकी श्री सचिन पायलट जी से निवेदन करना चाहेंगे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें, और आप सभी से पंडाल में निवेदन करना चाहेंगे अपना स्थान बनाए रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आदरणीय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज मैं प्रधानमंत्री जी का, सोनिया गांधी जी का और सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज दूदू की इस पंचायत में आधार योजना की दूसरी वर्षगांठ हम सब के बीच इन्होंने मनाई है। और जैसा सभी ने कहा, ये आधार कार्ड नहीं है, ये अधिकार गरीबों का है, इस भारत की जनता का है। और जो हम लोग सरकार की तरफ से जो धनराशि, जो स्कीम, जो योजना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें लोगों को पूरा धनराशि, पूरा अधिकार मिल सके, इसलिए ये आधार की योजना बड़ी अनिवार्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का कि उन्होंने आज दूदू के राजस्थान में आकर 21वां जो आधार कार्ड है वो एक महिला को दिया। साथियों, हमारी सरकार और हम लोग जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दूर दराज में रहने वाले गरीब किसान की मदद करने के लिए जो धनराशि और अधिकार देना चाहते हैं, उसका पूरी तरह प्राप्ति तब हो सकती है जब एक एक व्यक्ति के हाथ में यह अधिकार और आधार कार्ड मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने बड़ी कुशलता से पूरे प्रदेश भर में फैलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश और देश का एक एक व्यक्ति इस अधिकार को अपनाएगा और जो बीच में कालाबाजारी, धोखाधड़ी, दलाली का काम होता है उसको जमीन से उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे और इस आधार को अपने जीवन की एक शैली में लेकर आएंगे। आप सब यहाँ पर दूर दूर से आए, मैं आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सचिन पायलट जी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आज के इस आयोजन में हमारे लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की सरकार एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ यहां करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब राजस्थान सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल, जो आप देख रहे हैं आपके पंडाल के दाईं ओर, ये मोटराइज ट्राईसाइकिल यहाँ पड़ी है। इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट जनों को ये वाहन प्रदान करेंगी यूपीए की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोरदार तालियां बजाकर, अपने हाथ को उठाकर, अपने दोनों हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दीजिए ये सम्मान के लिए। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप सब अपने दोनों हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दीजिए। हम ये सम्मान, हमारे अतिथियों का सम्मान, माननीय सोनिया गांधी जी का सम्मान, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान और हमारे अतिथियों का सम्मान। तो देखा कि आपने कि आज के इस शुभ अवसर पर आधार समर्थित सेवाओं का देशव्यापी शुभारंभ हुआ। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या आधार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आधार विशिष्टता की गारंटी और ऑनलाइन पहचान सत्यापन के माध्यम से पूरे देश में प्रचलित सेवाओं। और इस समय आप देख रहे हैं कि यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी उन ट्राईसाइकिल का वितरण कर रही हैं जो
राजस्थान सरकार की ओर से विशेष योग्य जनों के लिए प्रदान की जानी है। ये ट्रिसाइकिल श्री सत्यनारायण जाट जी को, श्री हरफूल मीणा और श्री रतनलाल जाट। यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे अन्य अतिथियों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्रीगणों के साथ सभा स्थल से प्रस्थान करते हुए तो आज के इस विशिष्ट आयोजन के बाद, जबकि आधार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट समारोह में राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर से कुछ ही दूर दूदू में यह आयोजन संपन्न हुआ। हम आपको वापस लिए चलते हैं दूरदर्शन के स्टूडियो में। नमस्कार। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे राजस्थान के डूडू से, जहां की आधार कार्ड के दूसरे संस्करण का आगाज किया प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और साथ ही साथ उनके साथ तमाम विशिष्ट अतिथि डायस पे मौजूद थे, जिन्होंने कि डूडू के एक महिला को 21 करोड़वां आधार कार्ड देकर इस पूरे अभियान की विधिवत शुरुआत की। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसमें भी आधार कार्ड के जरिए आपको भुगतान हो पाएगा। साथ ही साथ इस भुगतान प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वो वित्तीय एकता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकना है। साथ ही साथ इस पूरे आधार कार्ड का जो एक परिभाषा जो गढ़ा गया वो UIDAI की तरफ से गढ़ा गया, विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण, जिसके कि अध्यक्ष नंदन नीलेकर्णी ने है। उनका कहना है कि अगले 2 सालों में कम से कम 60 करोड़ लोगों को ये आधार कार्ड मिल जाएगा। इसके आप सीधी तस्वीरें हमारे साथ अभी आप दूरदर्शन न्यूज़ पर यह खास प्रोग्राम हमारा देख रहे थे। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और इस ऐतिहासिक पहल जो आज शुरुआत की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डूडू में मौजूद अपने संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, तो हमने देखा और पूरे राष्ट्र ने देखा कि किस तरह से राजस्थान में इस द्वितीय जो संस्करण है आधार कार्ड की, उसकी विधिवत शुरुआत की गई। एक महिला को 21 करोड़वां कार्ड दिया गया। किस तरह का माहौल, किस तरह का जश्न है वहाँ पे आम लोगों के बीच? बिल्कुल एक बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन आपने भी देखा होगा किस तरह से यहाँ से देश के जो तमाम हिस्से उनसे जुड़े यहाँ के लोग दूदू से त्रिपुरा पहुँचे, दूदू से औरंगाबाद, मैसूर, काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ जो आधार समर्थित सेवाओं की जो शुरुआत हुई है उन सेवाओं को देखा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन स्कीम, इसके अलावा जो LPG वितरण स्कीम, तो ये तमाम योजनाएं अब आधार से जुड़ गई हैं। सिर्फ यही जगह नहीं, देश के 51 जिले आज से आधार समर्थित सेवाएं प्रदान करेंगे। यानी आधार कार्ड है आपके पास तो आपको इन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। आपके अकाउंट में पेंशन की राशि और स्कॉलरशिप की राशि भी आएगी। राजस्थान में 5 योजनाएं आधार के साथ जोड़ी गई हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा ग्रामीण आवास योजना जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके अलावा आशा सहयोगिनी यहाँ है, उन तमाम लोगों को आधार से जोड़ा गया है। 21 करोड़ वह आधार कार्ड आज जारी कर दिया गया। अब से ठीक 2 साल पहले पहला आधार कार्ड जारी किया गया था। मैं असीम पहले भी आपको कह रहा था, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था ये कार्यक्रम इस स्तर पर पहुंच जाएगा और अपने आप में अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये बन जाएगा। सबसे बड़ा डाटाबेस भारत के पास होगा, एक समावेशी डाटाबेस जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। और खास तौर पे आपने जैसा यूपीए अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को भी सुना होगा तो उन्होंने यही बात कही कि खास तौर पे इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, जो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे, जो बिचौलियों और भ्रष्टाचार के चक्कर में फंसे के रह जाते थे, तो उसका फायदा सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा। खास तौर पे एक पहचान उनको मिलेगी, उनको अपना हक मिल सकेगा इस योजना के मार्फत से। और एक कह सकते हैं ऑल इंडिया लॉन्चिंग भी हो गई है। उम्मीद ये भी करेंगे कि धीरे धीरे ये देश के दूसरे जिलों में भी और एक
पूरे देश में ये लागू हो, ताकि सब लोगों का इसका फ़ायदा मिल सके। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बैंक में खाता खुलवाना हो, LPG कनेक्शन लेना है या कोई और एक काम, ये न सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देगा, लेकिन आपको एक अधिकार और हक भी देगा जो आप ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बिना बिचौलियों के चक्कर में फंसे, बिना भ्रष्टाचार की चपेट में आए। असीम, अगर एक और अहम सवाल वो ये है कि हम भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, क्या इस आधार कार्ड के जरिए हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे आने वाले दिनों में कि जो धन या जो पैसा, जो राशि केंद्र सरकार से आम लोगों तक पहुंचाई जाने की कोशिश की जाती है तमाम पिछले कई सालों से, उसमें जो किसी तरह की लीकेज है वो इस आधार कार्ड के जरिए उसको रोका जा सकेगा? जी बिल्कुल असीम, इस योजना जो आज आधार समर्थित तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, उसका सबसे पहला मकसद ही यही है कि जो भ्रष्टाचार है वहाँ उसको खत्म करना। आपने देखा होगा जो दिखाया भी गया, सर्विसेज किस तरह से दी जा सकेंगी। एक सेंसर लगा होगा जहाँ जिस आदमी को सेवाओं का उपयोग करना है वो अपनी अंगुलियों के निशान देगा, उसका मिलान जो डाटाबेस है UIDA के पास, उस डाटाबेस से उसका मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही वो सेवाएं उस तक पहुँचेंगी। इसका मतलब कोई गलत व्यक्ति उन सेवाओं का फायदा नहीं उठा सकता है। दूसरा फायदा इसका ये होगा, जिन लोगों के पास अब तक अपनी पहचान नहीं थी, वो अपने अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वो अपनी पहचान ले सकेंगे आधार कार्ड के माध्यम से। आपको पता है कि काफ़ी सरल नियम है आधार कार्ड कैसे बनवाएं इसके लिए, और काफ़ी गंभीरता से सरकार की तरफ से भी इसकी कोशिश हो रही है। तमाम लोग जो बेघर हैं, बेरोजगार हैं, इस तरह के लोगों पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो आधार कार्ड आपका आसानी से बन जाएगा, उसके बाद आप अपने हक ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक BPL लिस्ट है, करीब 6.5 करोड़ लोगों कहा जाता है कि जो तमाम राज्य सरकारों का जो डाटा है उसमें BPL लिस्ट में है, उसमें भी कहा जाता है जो ज़रूरतमंद है उस वैसे कई लोग छूटे हुए हैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी लोग हैं, जो बोगस लोग हैं, उनसे भरा हुआ है। तो उस सूची में भी सुधार किया जा सकता है, उसमें जो वास्तविक लाभार्थी है उसको शामिल किया जा सकता है। असीम, इस वक्त 14 करोड़ LPG कनेक्शन है पूरे देश में, अगर इसको जोड़ दिया जाए आधार कार्ड के साथ तो कई इसमें भी बोगस कनेक्शन उनको खत्म किया जा सकेगा। और जिनके पास LPG कनेक्शन नहीं है, आधार कार्ड योजना के साथ वो कनेक्शन ले सकेंगे। तो ये अभी धीरे धीरे एक के बाद एक कदम बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2 साल में जितनी दूरी तय की है कह सकते हैं तारीफ के जरूर काबिल है, खासतौर पे नंदन नीलकेनी, उनकी टीम और भारत सरकार के लिए। तो एक बड़ी योजना जिस पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं था, एक कामयाबी की तरफ बढ़ता जरूर जा रहा है, और जरूर कहा जा रहा है कि 2014 तक हर एक दूसरे भारतवासी के पास आधार कार्ड होगा। सुधाकर, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, उसका हम छोटा सा जवाब भी आपसे चाहेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है NPR, क्या उसमें जो लोग रजिस्टर करवाएंगे खुद को, उससे अलग होगा आधार कार्ड, या फिर दोनों को मिला के एक कार्ड आपको दिया जाएगा जिसमें कि NPR के जरिए वो कार्ड में आपको सहूलियत होगी? असीम, मैं संक्षेप में यही कह सकता हूं कि दोनों कुछ रूपों में साथ साथ भी हैं और अलग अलग भी है। साथ साथ इसलिए क्योंकि दोनों जगह जो डाटाबेस बनाया जाएगा, अभी आधार कार्ड का फोकस कुछ खास राज्यों में किया जा रहा है। 16 राज्यों में आधार कार्ड का ज़्यादा फोकस है, बाकी राज्यों में भी चल रहा है, और बचे हुए राज्यों में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दोनों तरफ से जो डाटाबेस बनेंगे उसमें डुप्लीकेसी नहीं हो, तो दोनों जगह के डाटाबेस आपस में शेयर होंगे। इसके अलावा जो आधार कार्ड है फिलहाल ऐच्छिक है, जबकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब है हर एक नागरिक को एक पहचान पत्र देना, राष्ट्रीय पहचान पत्र देना। तो आने वाले समय में उसको जरूरी किया जाएगा ताकि एक पहचान पत्र भी लोगों को मिल सके। जबकि आधार कार्ड के मकसद से आपको 12 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, वो नंबर जैसे आप आज आधार आधारित सेवाओं का उपयोग करने के लिए आज योजनाएं शुरू हुई है, आने वाले दिनों में कई और योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान के डूडू से इन तमाम जानकारियों को, तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में हम आपसे इजाजत लेंगे, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।